سوری وہاں پہ کوئی آیا پھر سے اسٹارٹ. ہاں دوستوں, کیسے آپ لوگ؟ آج ہم کرنے والے ہیں یہ ریئیکشن دا مسلم ویب. یہ داتا ہندوستانی چینل پہ ملی ہے. دیکھتے ہیں کیسے ملی. الادین, سمبا اور علی بابا 40 چور. یہ ایسی کہانیاں جنہیں آج بھی امریکہ سے لے کر چائنا تک پوری دنیا جانتی ہے. لیکن اگر ان کہانیوں کو غور سے دیکھا جائے تو ان ساری کہانیوں میں ایک چیز کامن ہے. ان کہانیوں کے سارے ہیروز مسلمان کیریکٹرز ہیں. فار ایگزامپل, دنیا کی سب سے فیمس کہانی الادین اصل میں ایک مسلمان لڑکے علاء الدین کے بارے میں تھی. لیکن آخر کیوں؟ یہ سب آخر ہوا کیسے؟ یہ کوئی چھوٹا موٹا کوئنسیڈنس یا اتفاق نہیں, بلکہ اس سب کے پیچھے مسلمانوں کی ایک ایسی ہسٹری چھپی ہے جسے آج ہم بالکل بھول چکے ہیں. اور وہ ہے دنیا کی پہلی فلم انڈسٹری جو مسلمانوں نے خود بنائی تھی. اور ان ادر ورڈز, ایک مسلم ہالی ووڈ. ارے علی بابا, دروازہ کھولنے کا راز کسی کو مت بتاؤ. کھل جا سم سم, لیکن پہلے پیسے دو. آج تک دنیا میں مسلمانوں کی 3 بڑی امپائرز رہی. خلافت راشدہ, بنو امیہ اور عباسی خلافت. خلافت راشدہ وہ امپائر تھی جس نے تھوڑے سے ٹائم دنیا کی بڑی بڑی پاورز کو کرش کیا. پہلی بار مسلمان دنیا کے سپر پاور بنے. یہ دور مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت ٹائم تھا, کیونکہ اس وقت مسلمان صرف جنگوں اور جنگوں میں ہی بزی تھے. لیکن جیسے خلافت راشدہ اپنی طاقت کی پیک پر پہنچی, خلافت راشدہ دنیا سے ختم کر دی گئی, جس کے بعد خلافت ایک نئے خاندان کے پاس ہے, بنو امیہ. امیہ خلافت میں مسلمانوں کی طاقت اور بھی بڑھی. لیکن مسلمانوں کی اس ایمپائر میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. بنو امیہ صرف ایک عربوں کی خلافت تھی جو صرف عربوں کو ہی بادشاہ سمجھتے تھے اور باقی قوموں کو وہ اپنا غلام کہتے تھے. اسی طرح جس طرح آج کے عرب بادشاہ پاکستانیوں, انڈینز اور بنگالیوں کو ٹریٹ کرتے ہیں, اسی لیے بنو امیہ کی خلافت مسلمان سائنس, ٹیکنالوجی اور آرٹس میں کبھی بھی آگے نہیں جا سکے. لیکن آخر امیہ خاندان کے بعد دنیا میں مسلمانوں کی تیسری خلافت ہے, جس نے آنے والے مسلمانوں کو ہی بلکہ پوری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا. اور اس کا نام تھا عباسی خلافت, جسے آج تک پوری دنیا ایک ہی نام سے جانتی ہے, دا گولڈن ایج آف اسلام. عباسی خلافت کیا تھی؟ مسلمانوں نے اتنی بڑی دنیا فتح کر لی تھی کہ اب مسلمانوں کو اور آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں. مسلمانوں کے بارڈرز ایک طرف چائنا سے لے کر دوسری طرف اسپین تک پھیلے ہوئے تھے. تو اب جب جنگیں ختم ہو چکی اور ہر طرف پیس اور امن پھیلا ہوا تھا, مسلمان بادشاہوں نے پہلی بار اپنی اٹینشن جنگوں سے ہٹا کر ایسے لفظ کی طرف جو قرآن میں سب سے پہلے نازل ہوا تھا, اقرا, ریڈ. اور پھر اسی لیے عباسیوں نے دنیا میں اپنا نیا کیپٹل بنایا, دنیا کا سب سے بڑا شہر بغداد. آہستہ آہستہ یہ بات پوری دنیا میں پھیلنے لگی کہ اگر دنیا میں کوئی بھی پڑھنا اور لکھنا چاہتا ہے, وہ مسلمانوں کے اس شہر
बगदाद आ सकता है, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू, कोई भी हो। ऑफ कोर्स ये सब देखकर दुनिया में जितने भी स्मार्ट और जीनियस लोग वो अपने अपने इलाके यूरोप, चाइना, इंडिया को छोड़कर बगदाद की तरफ बढ़ने लगे। जिस तरह आज दुनिया के जीनियस लोग अमेरिका की तरफ जाते हैं, International students have come to the US, students studied in the United States. इसी तरह अब्बासी खिलाफत का कैपिटल बगदाद दुनिया के इल्म और नॉलेज का सेंटर बनने लगा। पर वेट, ये सब हमने बचपन से बार बार सुना कि एक जमाने में मुसलमान साइंस में दुनिया में सबसे आगे थे। बट ये वीडियो मुसलमानों की साइंस की ताकत के बारे में नहीं, बल्कि मुसलमानों के आर्ट्स की ताकत के बारे में, जिसे आज हम सब भूल चुके हैं। क्योंकि दुनिया में कोई भी सुपर पावर सिर्फ अपनी आर्मी और टेक्नोलॉजी से नहीं बनता, बल्कि सुपर पावर बनने के लिए आपको साइंस के साथ साथ आर्ट्स में भी पूरी दुनिया से आगे होना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज की सुपर पावर अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, लेकिन आर्मी के साथ साथ अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड भी है। अच्छा, इस बात का सिर्फ आज हमें नहीं पता, बल्कि आज से 1000 साल पहले बगदाद के बादशाहों को इस बात का अच्छी तरह पता था। इसीलिए जब अब्बासी बादशाहों ने पूरी दुनिया के टैलेंटेड लोगों को बगदाद बुलाया, पूरी दुनिया से लोग अपने इलाकों को छोड़कर बगदाद की तरफ बढ़ने लगे। पूरी दुनिया से ये लोग अकेले नहीं, बल्कि अपने साथ अपनी जबान, कल्चर और इवन कहानियां भी लेकर बगदाद आए। और इस तरह बगदाद में पूरी दुनिया के कल्चर्स और कहानियां जमा होने लगे। और बगदाद के लोग भी हर नए आने वालों से उनकी कहानियां सुनने के लिए गौर से उसके पास जमा हो जाते थे। और इस तरह यहां से बगदाद एक इंटरनेशनल सिटी बनी। और यहीं से बगदाद में दुनिया की पहली स्टोरी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई। तो जिस तरह आज एक फिल्म या मूवी एक हीरो या एक्टर होता है, James Bond. उसी तरह उस जमाने में बगदाद में भी एक नई फील्ड बनी जिसका नाम था हिकावती। हिकावती एक ऐसा बंदा होता था जो बगदाद के बाजारों में खड़ा होकर जोर जोर से लोगों को कहानियां सुनाया करता था। बादशाहों की कहानियां, जिन्नात की कहानियां और इवन पैगंबरों की कहानियां। बगदाद के इन हिकावतियों की कहानी सुनने के लिए लोग दूर दूर से जमा हो जाते थे। और अगर उसकी कहानी अच्छी होती थी, उसे बहुत ज्यादा पैसा भी मिलता था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इन कहानियों का बिजनेस इतना बढ़ने लगा अपने दरबार में कि ये पहली बार एक पूरी इंडस्ट्री बनी। बल्कि यहां तक कि लोग ट्रेनिंग्स लेने लगे कि एक अच्छी कहानी बनाते कैसे हैं। जिस तरह आज लोग फिल्म मेकिंग या एक्टिंग सीखने जाते हैं, लेकिन बगदाद की फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा मसला था। ये सारी बस आम कहानियां थी। इन्हें किसी ने भी गौर से सोच समझकर नहीं लिखा था, जिसमें बहुत सी कहानियां बिल्कुल बोरिंग कहानियां थी। जिस तरह आज
फ्लॉप फिल्में होती हैं आपको थप्पड़ कैसी लगी? भारी आवाज, स्कैरी पिक्चर। और ये बगदाद की फिल्म इंडस्ट्री को आहिस्ता आहिस्ता डुबा रहा था। इसीलिए ये देखकर बगदाद के कहानी वाले हिकावतियों को समझ आ गए कि अब उन्हें एक ऐसा काम करना होगा, एक ऐसी कहानी लिखनी होगी जिसे सुनकर लोग एक सेकंड इधर उधर ना देख सके और बिल्कुल गौर से इस कहानी को सुनते रहे। और इन अदर वर्ड्स हमें एक ऐसी कहानी बनानी होगी जिसे सुनने के लिए बगदाद का हर आदमी हर रात दूर दूर से चल कर आए। जिसके बाद यहां पर बगदाद में एक ऐसी कहानी लिखी गई जिसे बगदाद तो आज तक पूरी दुनिया नहीं भुला सकी। और इवन आप भी वो कहानियां बार बार सुन चुके हैं। अलादीन, अली बाबा और सिम्बाद जैसी कहानी। बगदाद के स्टोरी टेलर्स ने मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी कहानी पर काम करना शुरू किया और उन्होंने इस कहानी का नाम रखा 1001 रात, 1001 nights. Old stories. And they come from the 1001 Arabian Nights. 1001 nights. क्या अजीब सा नाम है, लेकिन इसी नाम के पीछे बगदाद की पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सीक्रेट छुपा है। और जैसे ये कहानी पूरी हुई, इस कहानी ने हमेशा के लिए दुनिया की फिल्म इंडस्ट्रीज को बदल कर रख दिया। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या? ये कहानी 1001 Nights आज भी दुनिया में पड़ी हुई। ये किताब नहीं, बल्कि ये किताब, ये है 1001 Nights. I mean, look at this book. जैसे ये किताब पूरी हुई, बगदाद का सबसे बड़ा हिकावती ये किताब लेकर बाजार पहुंचे। लोग उसे देखकर हर तरफ से उसके आसपास जमा हो गए और जैसे ही बहुत सारे लोग जमा हुए, इस आदमी ने उनके सामने ये किताब खोल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है आज से हजारों साल पहले एक बादशाह की, जो पर्शियन एम्पायर का शहंशाह था और उसका नाम था शहंशाह शहरयार, जिसका पूरी दुनिया पर राज था और दुनिया का हर बादशाह उसके सामने अपना सर झुकाता था। कोई भी इस दुनिया में शहरयार के हुक्म का इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन इस शहंशाह शहरयार की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। शहरयार की बीवी और पर्शियन एम्पायर की मलका। कहा जाता है शहरयार अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और उसकी बहुत इज्जत करता था। लेकिन एक दिन शहरयार जब अपने महल पहुंचे, उसे बताया गया कि उसकी बीवी, जिससे वो बहुत प्यार करता है, उसने शहरयार को धोखा दे दिया। इस एक खबर ने शहंशाह शहरयार को बिल्कुल तोड़ कर रख दिया और उसे इतना गुस्सा है कि उसने अपने हाथों से अपनी ही बीवी को मार डाला। लेकिन अपनी बीवी को मारने के बाद शहरयार का गुस्सा कम नहीं हुआ, बल्कि अपने बीवी के धोखे की वजह से अब शहरयार दुनिया की हर औरत से नफरत करने लगा। दुनिया की हर औरत उसे धोखेबाज लगने लगी और इसी गुस्से में उसने अपने वजीर आजम को हुक्म दिया कि आज के बाद मैं हर रात एक कवारी लड़की से शादी करूंगा। जाओ लेकर आओ। और सुबह होते ही मैं उस लड़की को मार डालूंगा। फिर शहरयार ने अपने वजीर की तरफ देखा और कहा, अगर एक रात भी तुमने मेरा हुक्म पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। अब शहरयार का वजीर एक बहुत ही शरीफ आदमी था और वो खुद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन शहंशाह का हुक्म टालना अपनी मौत को बुलाना था। जिसके बाद ऑफ कोर्स वजीर हर रात शहर से किसी कवारी लड़की को जबरदस्ती उसके घर से घसीट कर बादशाह के सामने पेश करने लगा।